Good morning, everyone. Welcome to your lordships. Basically, today we are going to deal with the topic of arrest. But before that, first we will revise the topics what were done before in the last class. So, what were we done? Preamble. Preamble of CRPC what says? It is a consolidating and amending act. आपको प्रियम्बल इसलिए याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा आता है कि प्रियम्बल में जो आपका ये एक्ट है सीआरपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, कैसे एक्ट्स हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, एविडेंस इज योर consolidating, amending and defining act, whereas CRPC is only consolidating and amending act. Another point is when it came into in force. CRPC came into in force on 1st day of April 1974. Then after that we had done the definition clause, in which most important definitions were 2A, that is bailable offence, which is shown as bailable in the first schedule of the CRPC. 2B is your charge. Charge का form है form number 32. 2C is for cognizable case and cognizable offence in which a police officer may arrest without warrant. And 2L is for non-cognizable case and non-cognizable offence in which a police officer cannot arrest you without a warrant. 2D is for complaint. Complaint may be written as well as oral, in which allegation is made about a person, whether known or unknown, has committed an offence. The purpose of making the complaint is what? To set the criminal law in motion. And complaint is made to the magistrate. Explanation of 2D says that if a police officer has already investigated a case and after investigation it found that it is a non-cognizable offence, it discloses the non-cognizable offence, then in that case that report shall be deemed to be the complaint and police officer shall be deemed to be the complainant. इसका हम कॉन्सिक्वेंस बताएंगे कि ऐसा क्यों है. बिकॉज नॉन कॉग्निजेबल केसेस में क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल केसेस में आपको मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर लेना होता है टू अरेस्ट, टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन. और लेकिन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस ऑफिसर इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन. सो इफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन विदाउट द मैजिस्ट्रेट परमिशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड लेटर ऑन यू से दैट इट इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बट आपने पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी, तो मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि आपने जो मिसयूज ऑफ योर पावर किया, क्योंकि आपके पास पावर केवल कॉग्निजेबल केस में है, इन्वेस्टिगेट विदाउट मैजिस्ट्रेट ऑर्डर, तो उस मिस पावर को उसको रोक सकती है. तो उसको वो कंप्लेंट कर देंगी और कंप्लेंट का पूरा प्रोसीजर आपका स्टार्ट हो जाएगा. होगा क्या, अब जब कंप्लेंट प्रोसीजर स्टार्ट होगा, मैजिस्ट्रेट हैज द पावर टू डिसमिस दिस कंप्लेंट अंडर सेक्शन 203. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज योर inquiry, 2G. Inquiry means every inquiry conducted under this code by a magistrate other than trial. Inquiry does not include trial. Trial is totally different thing and inquiry is totally different thing. 2H is for investigation. Investigation आपको दो चीज़ें याद करनी है कि who can do the investigation, that is police officer. Another is what is the purpose of investigation, that is for the collection of evidence. ये भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा ही जाता है. आफ्टर दैट 2WA आपका विक्टिम का है, दैट इज इंसर्टेड बाय द अमेंडमेंट. जब सीआरपीसी आया है 1 अप्रैल 1974 को, तब विक्टिम की डेफिनेशन नहीं थी सीआरपीसी में ओरिजिनली, बट 2009 अमेंडमेंट से इसे इंसर्ट किया गया है. विक्टिम में वो पर्सन इंक्लूडेड होता है अगेंस्ट हुम हु हैज सफर्ड एनी लॉस या इंजरी बाय द एक्ट और ओमिशन ऑफ द अक्यूज पर्सन, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द गार्जियन या लीगल हेयर्स ऑफ द विक्टिम. 2W is for summons cases and 2X is for warrant cases. Warrant cases means case in which the offence is punishable with death, life imprisonment or for imprisonment exceeding 2 years. Whereas summons cases means which is not a warrant case, means जो 2 साल से कम की जिसमें punishment है, that will be summons cases. That means 2 साल से कम की punishment and fine only cases will be the summons cases. And 2Y is your
इम्पोर्टेशन क्लॉज मीन्स जो टर्म्स और एक्सप्रेशन सीआरपीसी में यूज तो हैं बट डिफाइंड नहीं है, बट आईपीसी में डिफाइंड है, तो वी विल इम्पोर्ट द डेफिनेशन ऑफ दैट टर्म फ्रॉम द आईपीसी. ओके, नेक्स्ट वी हैड डन दैट स्पेशल जेएम कोर्ट ऑफ सेशन सेक्शन 9 किया था हमने. सेक्शन 9 and 10 इज ऑफ आवर कोर्ट ऑफ सेशन. कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी स्टैब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट. कोर्ट ऑफ सेशन हमेशा स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगी. आफ्टर दैट द इंपॉर्टेंट सेक्शन वॉज सेक्शन 13, दैट वॉज स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. कौन अपॉइंट कर सकता है? हु मे अपॉइंट स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट? दैट इज हाई कोर्ट. एंड फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 year एट अ टाइम, एक बार में केवल 1 साल तक के लिए ही उसे अपॉइंट किया जा सकता है. आफ्टर दैट अब हम पहले कवर कर लेते हैं 24 and 25 and 25A, which is important for your examination. 24 deals with prosecution officer, the public prosecutors. 2U of CRPC defines public prosecutor. 2U में definition है that the person appointed under section 24 is public prosecutor. And 24 हमें बताता है public prosecutor and additional public prosecutor के बारे में. असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन जो है ऑफिसर वो आपका आएगा 25 में, सेक्शन 25 में. 24 इज फॉर पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एपीपी एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर. सो स्टार्ट विद दैट. सेक्शन 24 सेज दैट फॉर एवरी हाई कोर्ट, a minute, for every high court the central government, the state government shall, after consultation with the high court, appoint a public prosecutor and may also appoint one or more additional public prosecutor. That means हर हाई कोर्ट के लिए जो भी पीपी अपॉइंट होगा वो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, दे मे अपॉइंट हिम. एंड फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग इन सच कोर्ट व्हाट? प्रोसिक्यूशन, appeal and other proceeding on behalf of the central government or state government. So appointment कौन कर रहा है? State government या central government, and it is written here shall. Second. One minute. सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन अपॉइंट करेगा? हर हाई कोर्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द पीपी, बट दैट टू आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट से आपको कंसल्टेशन करनी पड़ेगी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसिक्यूशन, अपील एंड अदर प्रोसीडिंग्स. नाउ द नेक्स्ट क्लॉज इज सेइंग central government may appoint one or more PP for the purpose of conducting any case or class of cases in any district or local area. Means high court में appoint करना mandatory है central government and state government को PP, but central government के पास यहाँ पर discretionary power है that he may appoint a PP in any district or local area, and the state government shall appoint a PP फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट. स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए पीपी अपॉइंट करे. हाई कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अपॉइंट करेंगी. सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट कर सकती है, बट स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पीपी इन फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट. एंड द fourth clause is saying that DM shall, in consultation with the session judge, prepare a panel of names of the person who are in his opinion to be fit as PP or APP. पैनल कौन बनाएगा?
डीएम बनाएगा। किसके कंसल्टेशन से? सेशन जज के कंसल्टेशन से। सेशन जज से कंसल्ट करके डीएम एक पैनल बनाएगा, उसमें नेम द पर्सन होंगे जो उसके अकॉर्डिंग फिट टू बी एक्ट एज अ पीपी होंगे। बट इफ you have an examination of regular cadre, then they may be appointed from that too. अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये जो पीपी एंड एपीपी अपॉइंट हो रहे हैं इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सब सेक्शन 7 says of 24 that a person shall be eligible to be appointed as PP or APP only if he has been in practice as an advocate for not less than 7 years. So 7 years की practice as an advocate होनी ज़रूरी है to be appointed as a PP or additional PP. And the central government और state government क्या कर सकते हैं? स्पेशल पीपी पे अपॉइंट कर सकते हैं, बट उसकी प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट कितनी होनी चाहिए? नॉट लेस देन 10 years. मीन्स पीपी एंड एडिशनल पीपी की प्रैक्टिस 7 year एज एन एडवोकेट एटलीस्ट, एंड स्पेशल पीपी की प्रैक्टिस आपकी एटलीस्ट 10 year एज एन एडवोकेट होनी चाहिए। देन आपका प्रोवाइजो आता है 8 का, दैट द कोर्ट में परमिट द विक्टिम टू इंगेज एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस टू असिस्ट द प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सबसेक्शन। यहाँ पर विक्टिम को ये पावर, ये रेमेडी दी गई है, ये उसको पावर भी दिया गया कि वो चाहे तो कोर्ट की परमिशन से अपनी चॉइस का एडवोकेट अपॉइंट करवा सकता है जिससे वो असिस्ट करवाएगा प्रोसिक्यूशन। मेनली होता क्या है, आपका कोई अभी अफेंस कमिट हुआ, दैट अफेंस इज कमिटेड अगेंस्ट स्टेट। सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर में या क्राइम, जो भी क्राइम होता है, क्राइम इज टू बी डीम्ड टू बी कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट। सो प्रोसिक्यूशन कौन करेगा? स्टेट की तरफ से ही होगा। बट द पर्सन हु इज द विक्टिम, ही मे ऑल्सो इंगेज हिज लॉयर, बट द लॉयर इज टू असर्ट द पीपी। डायरेक्टली कौन प्रोसिक्यूशन करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। नाउ सेक्शन 25. Section 25 tells you about Assistant Public Prosecutor, that is APO, जिसका आपका एग्जाम है। तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। बट किस कोर्ट में? मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में। स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट one or more assistant public prosecutor for conducting prosecution in the court of magistrate. 24 में जो पीपी एंड एपीपी अपॉइंट हो रहा है, दैट टू फॉर हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड दिस इज द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, सेक्शन 25. नाउ 1A says the central government may appoint one or more assistant public prosecutor for the purpose of conducting any case or class of cases in the court of magistrate. Central government may appoint additional PP, assistant PP, sorry. Section 25 का subsection 2 is important, that कोई भी पुलिस ऑफिसर एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं हो सकता है। आप पुलिस ऑफिसर को एज अ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं कर सकते। हाउएवर इसका एक्सेप्शन है सबसेक्शन 3 में, दैट जहाँ कोई भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल ना हो, इन दैट केस डीएम क्या कर सकता है? डीएम किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है एपीपी, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उस किसी पर्सन में पुलिस ऑफिसर भी आ सकता है, बट 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसेक्शन 2 तो कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट ही मत करिए, असिस्टेंट पीपी। एंड रीजन क्या है इसके पीछे का? रीजन ये है कि पुलिस ऑफिसर केस इन्वेस्टिगेट करता है और आप ही प्रोसिक्यूशन करने लगोगे कंडक्ट, तो आप बायस्ड हो जाओगे, बिकॉज वॉट एवर यू हैव सेड इन द इन्वेस्टिगेशन यू विल ऑल्सो से इन द प्रोसिक्यूशन। आप कुछ अलग मैटर नहीं लेके आओगे। हमारा पर्पस क्या है? किसी भी प्रोसीजर का पर्पस ये होता है टू सर्व द जस्टिस टू द पर्सन हु केम टू द कोर्ट। तो अल्टीमेटली जस्टिस शुड बी सर्व्ड। सो पुलिस ऑफिसर को भी अपॉइंट कर सकते हैं, बट वो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन में उसने पार्ट ना लिया हो जिसके लिए एक्यूज को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, और इंस्पेक्टर की रैंक से बिलो का ना हो। ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट थिंग इज दैट पुलिस ऑफिसर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट पीपी। सेकंड थिंग इज इट मे बी अपॉइंटेड वेयर नो असिस्टेंट पीपी इज अवेलेबल, डीएम अपॉइंट करेगा, बट दैट पुलिस ऑफिसर
shall not be below the rank of inspector and he shall not be participated in the investigation in which the accused is prosecuted. Now 25A, that is Directorate of Prosecution. कौन establish करेगा Directorate of Prosecution? State government. Directorate of Prosecution shall be established by the state government. However, the word may is used here. State government may establish a Directorate of Prosecution consisting of a Director of Prosecution and as many Deputy Directors of Prosecution as it thinks fit. एक Director of Prosecution होगा and other Deputy Directors अपॉइंट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट. अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? नॉट लेस देन 10 ईयर प्रैक्टिस की हो एज एन एडवोकेट. A person shall be eligible to be appointed as a director of prosecution or a deputy director only if he has been in practice for a term not less than 10 years as an advocate. And वो appointment with the concurrence of Chief Justice of High Court होगी. That means कंसल्ट नहीं कर रहे हैं आप चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को, आप कंकरेंस ले रहे हैं, उनकी सहमति ले रहे हैं, उनसे एग्री कर, वो एग्री करेंगे तब आप अपॉइंट कर सकते हैं उस पर्सन को एज अ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन. हेड कौन होगा उस डायरेक्टरेट का? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हेड होगा और वो अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट होगा. डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का हेड डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा एंड दैट टू अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट. अब वही सिंपल हायरार्की है दैट पहले डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हो जाएगा आपका, उसके नीचे डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हो जाएगा. Now next, we will do section 27, jurisdiction in the case of juveniles. ये important है, यहाँ से questions put up होते हैं. Any offence not punishable with death or imprisonment for life means किन cases में लग रहा है? Cases in which the offence is not punishable with death or life imprisonment and it is committed by a person who at the date when he appears or brought before the court is under 16 years. Means first thing is that offense punishable with death and life imprisonment नहीं होना चाहिए. Second thing is that किस person ने किया हो उसे, 16 years से below हो वो person, किस डेट पर, जिस डेट पर वो कोर्ट में आया है या लाया गया है, appears or brought before the court, on that date he should be less than 16 year. In that case उसे कौन try करेगा? Court of CGM. He may be tried by the court of CGM or by any court specially empowered under the Children Act. या अगर कोई और अदर लॉ बनाया गया फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर प्रोवाइडिंग द ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग या रिहैबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर. आप 16 साल से कम में आपने ऑफेंस कमिट किया, जिस टाइम आप कोर्ट में लाए गए हैं या अक्यूज पर्सन जिस टाइम कोर्ट में लाया गया वो उस टाइम 16 साल से कम था, 16 ईयर से बिलो था. इन दैट केस और उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया जो डेथ से भी पनिशेबल नहीं है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से भी पनिशेबल नहीं है, इन दैट केस सीजीएम उसका केस ट्राई कर सकता है या फिर कोई स्पेशल कोर्ट जो एम्पावर्ड है अंडर चिल्ड्रन एक्ट या फिर एनी अदर लॉ जिसमें उसके रिहैबिलिटेशन एंड ट्रीटमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस प्रोवाइडेड हैं. सो दिस इज टू प्रोटेक्ट द जुवेनाइल. 28, 29 वी हैव डन ऑलरेडी. एक रिवीजन कर लेते हैं इसका. 28 कहते हैं कि हाई कोर्ट क्या है? हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस ऑथराइज कर सकता है. एनी सेंटेंस विच इज ऑथराइज बाय द लॉ हाई कोर्ट में पास दैट सेंटेंस. आफ्टर दैट हाई कोर्ट के बाद आपका क्या आएगा? सेशन जज आएगा. सेशन जज कितनी सेंटेंस? एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, बट इफ द सेशन जज इज पासिंग द सेंटेंस ही मस्ट हैव द कंफर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट. आफ्टर दैट असिस्टेंट सेशन जज. असिस्टेंट सेशन जज कितने तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकता है? 10 ईयर्स तक की. सीजीएम 7 ईयर्स. ये क्वेश्चंस पुट होते हैं एग्जाम में कि कौन कितने साल तक की पनिशमेंट प्रोवाइड कर सकता है, आपको ये लिमिट याद रखनी है. देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितने साल तक की दे सकता है?
3 years एंड 10,000 तक का फाइन। देखिए नॉट एक्सीडिंग, ये आपका सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास नॉट एक्सीडिंग 3 years प्लस 10,000 फाइन, और फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 या बोथ दे सकता है। एंड सेकेंड क्लास आपका नॉट एक्सीडिंग 1 year एंड फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000। लिमिट किस पे है? फाइन पर है। कॉम्पनसेशन की कोई भी अमाउंट हो सकती है। नाउ 30 क्या रहा है? सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन मीन्स आपने क्या नाम है, कोर्ट ने सेंटेंस पास किया, उसमें सेंटेंस भी थी, मान लीजिए 2 years का सेंटेंस पास किया, देन फाइन भी पास कर दिया उसने। अब आप फाइन नहीं पे कर पा रहे तो उस फाइन के ल्यू में कोर्ट आपको इम्प्रिजनमेंट भी ग्रांट कर सकती है, दैट इज 30। वॉट 31 सेज, ये हमारा सब लास्ट क्लास में कवर हो चुका है। 31 सेज दैट वन ट्रायल चल रहा है और 2 या 2 से ज़्यादा के ऑफेंस के लिए आप कन्विक्टेड हैं, देन इन दैट केस कोर्ट क्या कर सकती, जनरल है, कॉन्जिक्यूटिवली सेंटेंसेस रन करेंगे। आपने 2 ऑफेंस कमिट किए हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, तो जितने भी सेंटेंसेस आपके पास होंगे हर पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, तो वो कॉन्जिक्यूटिवली रन करेंगे, वन आफ्टर एनदर। बट इफ कोर्ट स्पेसिफाई कर देता है दैट की कॉन्करेंटली रन करेंगे, तो सारे सेंटेंस एक साथ रन करेंगे, उसमें जो मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए आपको पनिशमेंट मिली होगी, दैट मीन्स अक्यूज को जो पनिशमेंट मिली होगी मैक्सिमम टाइम के लिए, वो कवर होगी। नाउ सेक्शन 36 चैप्टर 4। आपको इसकी सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल हेडिंग याद करनी है, क्योंकि एग्जाम में जितना पूछा जा रहा है आप उतना ही करके जाइए अभी, क्योंकि प्री का ये है आपका क्वेश्चन पेपर, और प्री में आपसे सिर्फ मार्जिनल हेडिंग या अंदर का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इस पार्ट से पूछते हैं, इस पार्ट से बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाके नहीं पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल 36 में पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस प्रोवाइडेड, दैट मीन्स सुपीरियर ऑफिसर्स के पास वो पावर होगी जो उनके सबॉर्डिनेट्स के पास है, ये इंक्लूडेड मानी जाएगी। 37 कह रहा है कि पब्लिक की ड्यूटी है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक टू असिस्ट द मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस when they are taking or preventing the escape of any other person whom such magistrate or police officer is authorized to arrest। जिस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए कोई मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर अथोराइज है, उससे स्केप करने से प्रिवेंट करने के लिए, उसे स्केप करने से रोकने के लिए पब्लिक की ड्यूटी है कि मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को एड करे इन प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस। कहीं पर पीस डिस्टर्ब हुआ है, ब्रीच ऑफ पीस हुआ है, तो उसको या होने वाला, उसको प्रिवेंट या सप्रेस करने के लिए अगर मैजिस्ट्रेट या पुलिस को आपकी हेल्प की जरूरत है, तो पब्लिक इज ड्यूटी बाउंड टू हेल्प देम इन प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड इन एनी रेलवे, कैनाल, टेलीग्राफ या पब्लिक प्रॉपर्टी। दैट मीन्स इंजरी हुई नहीं है, अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड, कहाँ पर? कैनाल, रेलवे, टेलीग्राफ या पब्लिक प्रॉपर्टी, वहाँ पे भी आपको मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को असिस्ट करना होगा, हेल्प करना होगा when they demand your assistance। 38 says aid to person other than police officer executing warrant, means आप पुलिस ऑफिसर नहीं वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है, यहाँ पे कोई और पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा है वारंट, तो वहाँ पर अगर वो मांग रहा है आपसे असिस्टेंट, तो अदर पर्सन मे एड, यहाँ ड्यूटी नहीं है। when a warrant is directed to a person other than a police officer, any person may aid in the execution of such warrant if the person to whom the warrant is directed to be near at hand and acting in the execution of the warrant। next is पब्लिक की, ये यहाँ पर ड्यूटी इन ऑफेंसेस में 39 में जो ऑफेंसेस प्रोवाइडेड है, इन केसेस में इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक टू गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट ऑफेंसेस। every person aware of the commission of या intention of any other person to commit any offence punishable under any of the following sections 121 to 126। 121 is your waging war, इस टाइप के जितने भी offences हैं वो चैप्टर 6 के, अगर वो कमिट होने वाले हैं, आपकी नॉलेज में है कि कोई से कमिट करने वाला, तो आप इसकी इंफॉर्मेशन दीजिए। नेक्स्ट इज योर सेक्शन 40 ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन द कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ अ विलेज टू मेक अ रिपोर्ट। इसमें आज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अरेस्ट। आज का मेन टॉपिक हमारा क्या है? अरेस्ट। चैप्टर 5 है आपका अरेस्ट का। सी चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन्स।
नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डज द टर्म अरेस्ट मीन्स? अरेस्ट का क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि अरेस्ट डिफाइन तो है नहीं कहीं सीआरपीसी में. तो वी कैन से दैट अरेस्ट मीन टोटल डिप्राइवेशन ऑफ द पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय द लॉ. तभी कोड में प्रोवाइडेड है, आप तभी अरेस्ट कर सकते हो. इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन एनी ऑफ द लॉ, यू कैन नॉट अरेस्ट एनी पर्सन. इफ यू आर अरेस्टिंग दैट पर्सन, दैट शैल अमाउंट टू व्हाट? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. Okay. Now 41. 41 says that when police may arrest without warrant. 41(1) is providing the cases in which a police officer may arrest a person without warrant. तो 41(1) के हम क्लॉजेस देखेंगे जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है. ए इज किसी पर्सन ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में. किसी पर्सन ने, एनी पर्सन हैज कमिटेड एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, देन इन दैट केस पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट हिम विदाउट वारंट. किसी पर्सन के अगेंस्ट रीजनेबल कंप्लेंट मिली है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है, रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है दैट ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस विच इज पनिशेबल फॉर अ टर्म which may be less than 7 year या which may extend to 7 year. 7 साल तक या 7 साल से कम के लिए पनिशेबल है. कंप्लेंट मिली है, किसी ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है विच इज पनिशेबल फॉर लेस देन 7 years और विच एक्सटेंड टू पनिशेबल विथ 7 years. देन इन दैट केस और पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकता है, बट इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड. फर्स्ट इज थिंग क्या? रीजनेबल कंप्लेंट होनी चाहिए, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होना चाहिए और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करना चाहिए दैट किसी पर्सन ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है जो 7 साल या 7 साल से कम के लिए पनिशेबल है. एंड फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं. व्हाट? दैट पुलिस ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है उस कंप्लेंट इंफॉर्मेशन सस्पिशन के बेसिस पे दैट उस पर्सन ने वो ऑफेंस कमिट किया है. दैट मीन्स रीजन टू बिलीव भी होना चाहिए आपके पास. एंड द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी. इनमें से किसी भी पर्पस के लिए उसका अरेस्ट नेसेसरी है. पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाई है. यहाँ पे इतने टर्म्स क्यों यूज हो रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर का सेटिस्फैक्शन जरूरी है, पुलिस ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए. बिकॉज इफ यू आर अरेस्टिंग समवन विदाउट वारंट, you cannot misuse your power. Police officer cannot misuse his power. So when he submitted its report, when he will submit its report to the magistrate, to the DM, so he should explain the reason why I have arrested this person. Without any reason आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं. So आपका सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है. पुलिस ऑफिसर कल को ये नहीं बोल सकता है कि हाँ मुझे लगा मैंने कर दिया. किस बेसिस पे आपको ऐसा लगा? You will have to explain that. ठीक? तो फर्स्ट थिंग इज दैट रीजन टू बिलीव होना चाहिए. सेकेंड थिंग इज दैट पुलिस ऑफिस सेटिस्फाई है कि वो अरेस्ट नेसेसरी है किन किन पर्पजेस से. टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस. उस पर्सन को रोकना है कि वो कोई फर्दर ऑफेंस ना कमिट कर दे और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वायर्ड है. और टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग एनी एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपेयर या टैम्परिंग विद द एविडेंस इन एनी मैनर. उस पर्सन को प्रिवेंट करने के लिए वो कि एविडेंस, किसी भी एविडेंस को रिलेटेड टू द केस को टैम्पर ना कर दे, डिसअपियर ना कर दे. और टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स. किसी भी विटनेस को, किसी भी पर्सन को, बिकॉज द पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स विल बिकम द विटनेस ना लेटर ऑन एंड ही विल टेस्टिफाई अगेंस्ट हिम दैट हाँ सच एंड सच पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस इन फ्रंट ऑफ मी, आई हैव सीन दैट. तो उसको वो इंड्यूस ना करे, उसको वो थ्रेट ना करे, उससे प्रिवेंट करने के लिए. अनदर लास्ट इज टू प्रिवेंट सच एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट वेन एवर रिक्वायर्ड कैन बी इंश्योर्ड. कोर्ट में उसकी प्रेजेंस इंश्योर कराने के लिए. सो दीज आर द 5 ग्राउंड्स. इनमें से किसी भी ग्राउंड में उसका अरेस्ट नेसेसरी है एंड पुलिस ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है दैट सच पर्सन हैज कमिटेड दैट ऑफेंस. इस अरेस्ट को करते टाइम पुलिस ऑफिसर को इन राइटिंग रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा. BA, clause BA, against whom credible information has been received that he has committed a cognizable offense punishable with a term
which may extend to more than 7 years, whether with or without fine or death sentence, and the police officer has reason to believe on the basis of that information that such person has committed the said offense. Means credible information मिली है that उस person ने कोई ऐसा offense commit किया है which is punishable for more than 7 years, and police officer के पास reason to believe है that person has committed such offense. C proclaimed offender है. proclaimed offender से रिलेटेड सेक्शन क्या है? 82 क्लॉज 4. व्हेन वी विल डू द सेक्शन 82 देन वी विल सी कि हु इज द प्रोक्लेम्ड अफेंडर. अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रोक्लेम्ड अफेंडर को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं. डी इज जिसके पोजेशन में कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी मिली है विच इज सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन है. सी in whose possession anything is found which may reasonably be suspected to be stolen property and who may reasonably be suspected of having committed an offense with respect to such thing. E any person who obstruct a police officer while in execution of his duty. पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहा है, आप उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं अपनी ड्यूटी करने में. पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने गया है, आप उसे थ्रेट दे रहे हैं गन दिखा करके, नहीं आप इसको नहीं ले जा सकते हैं. what you are doing, you are obstructing him from doing his duty. Then in that case police officer may arrest you without warrant. or who has escaped या attempts to escape from lawful custody, या फिर कोई person lawful custody से escape कर गया है या attempt to escape किया है. F reasonably suspected है, that वो क्या है? deserted और armed forces of the union है, यूनियन की आर्म फोर्सेस से भागा हुआ है, तो उसे भी आप विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं. Now G who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made या credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having concerned in any act committed at any place out of India. उसने कोई एक ऐसा एक्ट कमिट किया आउटसाइड इंडिया विच इफ वो इंडिया में कमिट करता तो वो ऑफेंस होता एंड एक्सट्रेडिशन लॉज के अकॉर्डिंग उसे इंडिया को उसे कस्टडी में डिटेन करना, इंडिया उसके लिए लायबल है. कमिट कहाँ किया एक्ट? आउटसाइड इंडिया. लायबल कहाँ है? इंडिया में. अगर वो एक्ट उसने इंडिया में किया होता पनिशेबल होता, देन इन दैट केस उसको भी आप विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है. नेक्स्ट 356(5) में किसी कन्विक्ट को रिलीज किया गया है और 365 में जो कंडीशंस प्रोवाइडेड हैं उस कंडीशन को अगर उसने ब्रीच किया है देन उसका भी अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकता है. आफ्टर रिक्विजिशन है, कोई किसी सुपीरियर ने अपने सबॉर्डिनेट को बोला है, किसी सुपीरियर ने कहीं और, किसी ऑफिसर ने, पुलिस ऑफिसर ने कहीं और रिक्विजिशन की है दूसरे पुलिस ऑफिसर को, रिटन और ओरल, दैट दिस पर्सन इज टू बी अरेस्टेड विदाउट वारंट provided that the requisition specify the person to be arrested in the offense or other cause for which the arrest is to be made, and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition. जिसने requisition दिया अदर पुलिस ऑफिसर को, वो उसे विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता था. देन दैट केस जिसे रिक्विजिशन दी गई है, रिक्वेस्ट की गई है, वो उसे विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेगा. These are the cases A to I of section 41 clause 1 in which a police officer may arrest a person without warrant if these conditions are fulfilling. In any of these cases, police officer may arrest without warrant that person. Other cases में आपको permission लेनी होगी warrant पर, आप warrant पर arrest कर सकते. Police officer can arrest a person on warrant. Now, section 41. Section 41A. Section 41A आपका अमेंडमेंट से आया है. कौन सा अमेंडमेंट से आया है? एक्ट नंबर 5 ऑफ 2009 विद इफेक्ट फ्रॉम 2010. नवंबर 2010 से इफेक्ट में आया है 41A आपका. इसमें क्या होता है? नोटिस जाती है 41A में. पुलिस ऑफिसर नोटिस इशू करेगा. किन केसेस में? ऑन दोज केसेस विच आर नॉट कवर्ड इन 41(1). 41(1) में अगर वो केसेस फॉल नहीं कर रहे हैं एंड पुलिस ऑफिसर के पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई है कि that such and such person has committed a cognizable offense, then police officer may issue a notice to that person and that person has to comply with the notice. If वो person comply नहीं करता, if that person does not comply with the notice, then in that case police officer may arrest him
but subject to the order of court. Now let's read this. 41A. Notice of appearance before police officer. The police officer shall in all cases, the police officer shall in all cases where the arrest of a person is not required under the provision of 41(1). 41(1) में उस पर्सन की अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, देन इन दैट केस पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, इशू अ नोटिस. उस नोटिस में क्या करेगा, डायरेक्शन देगा. द पर्सन अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense. आपके पुलिस ऑफिसर के पास कोई भी इंफॉर्मेशन आई है क्रेडिबल, रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है दैट दैट पर्सन हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, बट 41(1) में अरेस्ट नहीं कर सकता है, देन इन दैट केस पुलिस ऑफिसर शैल इशू अ नोटिस टू दैट पर्सन टू अपीयर बिफोर हिम और एट सच अदर प्लेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन दी नोटिस. उस जगह पर आइए जो नोटिस में स्पेसिफाइड है. अगर वो पर्सन, ये ड्यूटी उस पर्सन की, वो नोटिस कंप्लाई, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू कंप्लाई विद द नोटिस. इफ ही डज नॉट कंप्लाई, पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट हिम सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ कोर्ट. 41B provides for the procedure of arrest and duties of the officer making arrest. The police officer who is making the arrest, what is his duty and what is the procedure to arrest. So police officer shall wear a clear identification of his name. This is his duty. Bear an accurate, visible and clear identification of his name which will facilitate easy identification. And second is prepare a memorandum of arrest which shall be attested by at least one witness. ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है दैट मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट कितने विटनेस से अटेस्ट होना चाहिए, तो दैट इज वन विटनेस. दैट वन विटनेस शुड बी या तो मेंबर हो अरेस्टेड पर्सन की फैमिली का, और जिस एरिया में अरेस्ट हुआ है वहाँ का कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन हो. एंड द मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट शैल बी काउंटर साइंड बाय द अरेस्टेड पर्सन. काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड. यहाँ पे पर्सन अरेस्टेड क्यों वर्ड यूज हो रहा है, एक्यूज क्यों नहीं यूज हो रहा है, बिकॉज अभी तक ये नहीं पता चला है कि उसने कोई ऑफेंस किया है कि नहीं किया है. 41C कंट्रोल रूम एंड डिस्ट्रिक्ट. तो कौन इस्टेब्लिश करेगा कंट्रोल रूम, स्टेट गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश अ पुलिस कंट्रोल रूम वेयर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एट स्टेट लेवल. ओके. 41D right of arrested person to meet an advocate of his choice during interrogation. 41D provides the right to the person who has been arrested that during interrogation he may meet his advocate, but during interrogation for a time, throughout interrogation nahi. So this is the right of the arrested person. Now 42. 42 को हमें 2L के साथ पढ़ना चाहिए. क्यों? क्योंकि 2L में आपकी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन प्रोवाइडेड है विच सेज दैट अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट. एंड 42 सेज व्हाट, किसी पर्सन ने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, एनी पर्सन हैज कमिटेड एनी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर. कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया होता तो 41(1) में ए में अरेस्ट कर लेता पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट, बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर. एंड पुलिस ऑफिसर उससे उसका नेम एंड एड्रेस अगर पूछता है एंड वो रिफ्यूज कर देता बताने से, द पर्सन रिफ्यूजेस टू गिव हिज नेम एंड एड्रेस और whatever address or name he provides, police officer seems that it is false, then in that case police officer may arrest him. But जैसे ही उसका true name and residence पता चल जाता है, police officer shall release him on executing a bond. And अगर true name and address within 24 hours नहीं पता चल पाया, 24 आवर्स तक पुलिस ने उसे डिटेन रखा कस्टडी में और 24 आवर्स तक नहीं पता चल पाया व्हाट इज हिज ट्रू नेम एंड एड्रेस, देन इन दैट केस ही शैल फोर्थविथ बी फॉरवर्डेड टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन. फोर्थविथ मतलब इमीडिएटली उसे फॉरवर्ड करना होगा दैट अरेस्टेड पर्सन टू इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट जिसके पास जुरिसडिक्शन है.
Now what does 43 says? That arrest by a private person भी arrest कर सकते हैं किन cases में? When a person has committed a non-bailable and cognizable offence in his presence, or the person is proclaimed offender. क्या commit किया हो? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया हो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, ये नॉन कॉग्निजेबल प्लस सॉरी दिस शुड बी कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल, बेल नहीं मिल सकती उस केस में, प्लस कॉग्निजेबल, दैट मीन्स इट इज अ सीरियस इन नेचर ऑफेंस, द ऑफेंस इज सीरियस इन नेचर, और he is a proclaimed offender. Then in that case private person may arrest him, and after arresting he will forward it to the nearest police station. See, taken in the custody to the nearest police station. अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि 41 के ग्राउंड्स हैं, then in that case he will re-arrest him. If नहीं है then he shall release him. Now 44, arrest by magistrate. Magistrate here means judicial magistrate or executive magistrate may also arrest a person whom when any offence is committed in the presence of a magistrate, whether executive or judicial, उनकी presence में offence commit हुआ है, within his local jurisdiction, उनकी local jurisdiction में offence commit हुआ है, उनकी presence में, judicial या executive magistrate की presence में, या उनकी और and उनकी local jurisdiction में offence commit हुआ है, then he may himself arrest or order any other person to arrest that offender, and may thereupon, अगर bail के provisions हैं तो उसे bail दे देंगे, otherwise custody में रख लेंगे. And any magistrate, whether judicial or executive, may at any time of arrest direct the arrest in his presence within his local jurisdiction of any person for whose arrest he is competent. या तो उनकी presence में आपने कोई offence commit किया हो, the person has committed any offence in the presence of the magistrate, और उसको arrest करने के लिए वो competent हो, then in that case, और issue warrant कर सकते हैं, then in that case the magistrate may arrest him or order any other, direct any other person to arrest him. So arrest कौन कौन कर सकता है? पुलिस ऑफिसर 41, 41A, 42 में प्राइवेट पर्सन, 43 में मैजिस्ट्रेट, 44 में. 45 says that आर्म फोर्सेस के पर्सन्स मेंबर्स को, आर्म फोर्सेस के मेंबर्स को उन्होंने कोई भी एक्ट किया हो, यहाँ पे ऑफेंस वर्ड नहीं यूज हो रहा है, सी एनीथिंग डन और पर्पटेड टू बी डन, उन्होंने कोई भी एक्ट किया है, देन इन दैट केस, और किस में किया है? इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज में कोई एक्ट किया है, देन इन दैट केस वो अरेस्ट नहीं किया सकते हैं, एक्सेप्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग दी कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर आपको करना है उन्हें अरेस्ट, अगर पुलिस ऑफिसर उन्हें अरेस्ट करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी. सो इनको यहाँ पर प्रोटेक्शन दी गई है 45 में. नाउ 46 सेज अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट कैसे किया जाता है? तो अरेस्ट कैसे करेगा? अरेस्ट कौन कर रहा? पुलिस ऑफिसर कर रहा है. इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन, हमें ये तो पता ही चल चुका है कौन कौन अरेस्ट कर सकता है. सो अरेस्ट कौन कर रहा? पुलिस ऑफिसर या एनी अदर पर्सन मेकिंग द सेम शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन द पर्सन, उसे पकड़ेंगे, उसे टच करेंगे, कन्फाइन करेंगे, अनलेस ही हैज सबमिटेड हिज सबमिशन इन वर्ड्स और एक्शन दैट आई एम सबमिटिंग माई सेल्फ, देन इन दैट केस आपको टच करने की जरूरत नहीं. अदरवाइज आपको टच, पुलिस ऑफिसर या पर्सन अरेस्टिंग द पर्सन शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन दैट पर्सन. बट इफ वुमेन है, द पर्सन टू बी अरेस्टेड इज वुमेन, देन इन दैट केस ओरल इंटीमेशन ऑफ अरेस्ट, सबमिशन टू कस्टडी हम मान लेंगे, शैल बी प्रिज्यूम्ड, यहाँ पे प्रिजम्पशन हम लेंगे, अनलेस अदरवाइज रिक्वायर, or unless the police officer is a female. अगर police officer female है, then in that case no problem, she can touch and confine her. But if the police officer is male, then in that case हम ये मानेंगे that उसने
हम ये प्रिजम्पशन दिया गया उसके फेवर में दैट शी हैज सबमिटेड हरसेल्फ। उसको आपको ओरल इंटीमेशन देनी होगी कि हाँ हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। अब अगर वो कुछ नहीं कहती, कुछ रिएक्ट नहीं करती, कुछ अदरवाइज जैसे स्केप करने की कोशिश नहीं करती, तो माना जाएगा दैट उसने सबमिशन दे दिया है। अब इस अरेस्ट करने में आप कोई भी पुलिस ऑफिसर या जो पर्सन अरेस्ट कर रहा है वो कोई भी रीजनेबल फोर्स यूज कर सकता है। इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेसिस्ट द एंडेवर टू अरेस्ट हिम, द पर्सन टू हुम द जिसका अरेस्ट करना, जिसे अरेस्ट करना है, इफ ही इज रेजिस्टिंग, रोक रहा है, देन इन दैट केस सच पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन में यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू दी इफेक्ट द अरेस्ट। अरेस्ट करने के लिए जितने भी जरूरी नेसेसरी मीन्स हैं वो यूज कर सकता है पुलिस ऑफिसर। हाउएवर if the offense is not punishable with death, or then in that case, see, if the offense is not punishable with death or life imprisonment, then in that case the person arresting of the police officer cannot cause the death of that person. Nothing in this section gives a right to cause a death of a person who is not an accused of an offense punishable with death या life imprisonment. Means अरेस्ट करने के लिए तो जितनी भी नेसेसरी मीन्स है वो यूज की जा सकती हैं टू मेक सच अरेस्ट इफ ही इज रेजिस्टिंग, बट इफ द offense is not punishable with death or life imprisonment, then in that case उसकी डेथ नहीं कॉज की सकती है अरेस्ट करने के लिए। एंड फोर्थ क्लॉज इज सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, किसी भी विमेन का अरेस्ट आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज नहीं कर सकते हैं। जो भी अरेस्ट करना है आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट कीजिए। बट इफ इट इज रिक्वायर्ड टू immediately arrest that woman, then in that case what is the provision? That women police officer shall by making a written report, एक written report बनाएगी वुमेन पुलिस ऑफिसर, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाएगी, उससे परमिशन लिया जाएगा दैट हाँ हमें ये अरेस्ट करनी है। तो ये क्वेश्चन भी आया है आपके प्री के एग्जाम्स में, किसकी परमिशन रिक्वायर्ड है? तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इस केस में किसकी परमिशन रिक्वायर्ड है? जहां पर अरेस्ट वुमेन का करना है आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की परमिशन ली जाएगी। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज 47, सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। अब जिस पर्सन को अरेस्ट करना है वो किसी प्लेस में चला गया, किसी और प्लेस में एंटर कर गया, किसी बिल्डिंग में एंटर कर गया है, एंड द पर्सन एक्टिंग अंडर वारंट ऑफ अरेस्ट या पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट, उसके पास क्या रीजन टू बिलीव है दैट दैट पर्सन हैज एंटर इनटू सम प्लेस, देन इन दैट केस द पर्सन हु इज रिजाइडिंग इन दैट बिल्डिंग और हु इज इन चार्ज ऑफ दैट प्लेस, ही शैल ऑन डिमांड of such person who is making the arrest or police officer allow him free ingress and afford all reasonable facilities for a search therein. Means पुलिस ऑफिसर या कोई और पर्सन जो अरेस्ट कर जो अरेस्ट करना है जिसको दूसरे पर्सन को, उसके पास रीजन टू बिलीव है दैट द पर्सन जिसे अरेस्ट करना है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस में जाके छुप गया है, देन इन दैट केस जो पर्सन उस प्लेस पे रह रहा है या उसके इंचार्ज में है, उसकी ड्यूटी है कि वो पुलिस ऑफिसर को या अदर पर्सन मेकिंग अरेस्ट को फ्री इनग्रेस दे एंड ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज दे टू सर्च दैट पर्सन। एंड इफ वो फ्री इनग्रेस या ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करता है, देन इन दैट केस पुलिस ऑफिसर और द पर्सन मेकिंग अरेस्ट हैज द पावर टू ब्रेक एनी डोर और विंडो for the making of such arrest. And if the police officer has entered in that place lawfully enter तो कर गए हैं but उसमें detain कर लिए गए हैं, then in that case also that person who is making arrest or the police officer has the power to break the door and window in order to liberate himself. ठीक है, तो 47 इज योर सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड।
48. Pursuit of offenders into other jurisdiction. A police officer may, for the purpose of arresting without warrant word has been used, any person whom he is authorized to arrest, pursue such person into any place of India. Means पुलिस ऑफिसर अगर किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट करने के लिए ऑथराइज्ड है, देन इन दैट केस वो पूरे इंडिया में कहीं भी उसे अरेस्ट कर सकता है, परस्यू कर सकता है उसे. 49 says that no unnecessary restraint. The person arrested, जिसे अरेस्ट कर लिया गया है, उसके साथ उसकी स्केप से रोकने के लिए उसके साथ उतनी ही रिस्ट्रेंट यूज़ करिए जितनी ज़रूरी है. ओनली द नेसेसरी, अननेसेसरी रिस्ट्रेंट आप नहीं यूज़ कर सकते हैं. 50 प्रोवाइड्स दैट राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन. व्हाट इज़ दैट? 50 का क्लॉज 1 कह रहा है कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताइए आप पहले तो, जिसे विदाउट वारंट आपने अरेस्ट किया, पुलिस ऑफिसर ने जिसे विदाउट वारंट अरेस्ट किया, उसे आप ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताइए दैट आपको इस पर्पस के लिए भाई अरेस्ट किया जाता, आपने ये एक्ट किया, आपने ये ऑफेंस किया है. सेकेंड इज दैट अगर उसके पास बेल का राइट है तो आप उसे बताइए कि हाँ यू हैव द राइट टू गेट द बेल. सो दीज आर द टू राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन. यहाँ पे विदाउट वारंट टर्म्स क्यों यूज हो रहा है कि विदाउट वारंट के केस में उसको बताना ज़रूरी है दैट ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या है? बिकॉज सेक्शन 75 ऑफ CRPC प्रोवाइड दैट वारंट ऑफ अरेस्ट में आपको सब्सटेंस देना होगा, दैट फॉर व्हाट पर्पस द वारंट इज इश्यूड, व्हाट इज द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट. ओके, तो 75 ऑलरेडी प्रोवाइडेड इस पे. नाउ 50A, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग द अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट टू अ नॉमिनेटेड पर्सन. जिस पर्सन ने अरेस्ट किया है या पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया है, उसकी ये ड्यूटी है डैट वो फोर्थविथ इंफॉर्मेशन दे उस अरेस्ट की एंड उस प्लेस की अरेस्टेड पर्सन के फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड को, किसी भी एक पर्सन को वो उसकी इंफॉर्मेशन दे. द पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द arrested person of his right under subsection as soon as he is brought to the police station. पुलिस स्टेशन लाते ही उसको ये बताया जाएगा कि आपके पास राइट है कि आप किसी को भी नॉमिनेट करिए, हाँ दिस पर्सन को आप ये इन्फॉर्मेशन दे दी आई हैव बीन अरेस्टेड. इसका वो पर्पस क्या है? सो दैट अगर उसे बेल लेना हो तो वो बेल ले सके, उसे अपने एडवोकेट से मीट करना हो तो मीट कर सके. कोई एक ऐसा पर्सन उसके पास नॉलेज होनी चाहिए दैट हाँ हमारा फैमिली फ्रेंड या हमारा रिलेटिव इज डिटेन इन जेल. ओके. 51 सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन. जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसकी सर्च. जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया पुलिस ऑफिसर ने अंडर अ वारंट, सी विच डज नॉट प्रोवाइड फॉर टेकिंग ऑफ बेल, नॉन बेलेबल वारंट है, या अंडर अ वारंट विच प्रोवाइड्स फॉर टेकिंग बेल बट द पर्सन कैन नॉट फर्निश द बेल. पर्सन बेल नहीं ले सकता है, या तो नॉन बेलेबल वारंट के अंदर उसे अरेस्ट किया गया या फिर वो बेल फर्निश ही नहीं कर सकता है. या अरेस्ट विदाउट वारंट या बाय अ प्राइवेट अंडर अ वारंट कैन नॉट लीगली बी एडमिटेड टू बेल. किसी भी केस में बेल नहीं दे सकता. इन दैट केस क्या हो, वो कस्टडी में हो गया. इफ बेल दे दिया तो रिलीज वो चला जाएगा बेल पे. बट अगर आपने उसे बेल नहीं मिल पाई या वो बेल नहीं ले पाया, देन इन दैट केस वो आपके पास कस्टडी में आ गया. तो पर्सन क्या करेगा? पर्सन मेकिंग अरेस्ट उसे सर्च करेगा एंड उसके पास से जो भी आर्टिकल्स मिलेंगे उसे सेफ कस्टडी में रखेगा. अदर देन नेसेसरी वेयरिंग अपरेल को छोड़ करके बाकी उससे जो भी आर्टिकल्स मिले हैं उसे ले करके उसे सेफ कस्टडी में रखेगा और उसकी एक रिसीट बनाएगा. वो रिसीट उस पर्सन को देगा. ओके. सी may search such person and place in safe custody all articles other than necessary wearing apparel found upon him, and where any article is seized from the arrested person, a receipt showing the articles taken in possession by the police officer shall be given to such person. फीमेल के केस में स्ट्रिक्ट डिसेंसी से आपको उसका सर्च करना, पुलिस ऑफिसर को स्ट्रिक्ट डिसेंसी से उसका सर्च करना है. द सर्च शैल बी मेड बाय अनदर फीमेल. मीन्स फीमेल पुलिस ऑफिसर नहीं लिखा है, सिर्फ अनदर फीमेल लिखा है. 52 इज पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स. सो the officer or the person making any arrest under this code may take from the person arrested any offensive weapon. जिसको अरेस्ट किया गया उसके पास से कोई ऑफेंसिव वेपन मिला है, इन दैट केस पुलिस ऑफिसर उसे सीज कर लेगा एंड दैट शैल बी डिलीवर्ड टू द कोर्ट.
shall deliver all weapons to so taken to the court or officer before whom या which officer or person making the arrest is required to produce the person arrested, या जिसके सामने जिस ऑफिसर के सामने उसे अरेस्टेड पर्सन को लेके जाना है. Now 53A and 54 deals with the provisions relating to medical examination. 53A 54. 53 में आपका एक्यूज पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन है. 53 इज एक्यूज ऑफ रेप एंड 54 इज अरेस्टेड पर्सन. एंड एग्जामिनेशन में क्या इंक्लूड होता है, ये 53 के एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइडेड है, विच इज एप्लीकेबल ऑन 53, 53A एंड 54, ऑल द सेक्शंस. ओके, नाउ सी, when a person is arrested on a charge of committing an offence of such a nature, person is arrested, person को अरेस्ट किया गया है किस चार्ज पे कि उसने कोई एक ऐसा अफेंस किया है जो इस नेचर का है, दैट वो ऐसी सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड करता है दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट अगर हम उसका एग्जामिनेशन कराएंगे देन दैट विल अफोर्ड एविडेंस एज टू द कमीशन ऑफ अफेंस. अफेंस की कमीशन से रिलेटेड एविडेंस वो अफोर्ड कर हो सकता है इसके एग्जामिनेशन से. देन इन दैट केस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उसको एग्जामिन करेगा पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे, विच हु शैल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर. रिक्वेस्ट कौन करेगा, पुलिस ऑफिसर, जो कि सब इंस्पेक्टर SI की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए. एंड फॉर एनी पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ इन हिज एड एंड अंडर हिज डायरेक्शन to make such examination of the person arrested as is reasonably necessary in order to ascertain the facts which may afford such evidence. पर्पस क्या है कि हमें कमीशन ऑफ क्राइम से रिलेटेड एविडेंस मिल जाए उस पर्पस के लिए जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है कि उसने कोई ऐसा क्राइम किया है, उसका एग्जामिनेशन कौन करे, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. किसकी रिक्वेस्ट पे, पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे, विच इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ SI. नाउ एग्जामिनेशन का क्या मतलब है यहाँ पर. So examination shall include the examination of blood stains, semen, swabs in case of sexual offences, sputum and sweat, hair samples and fingernail clippings by the use of modern and scientific techniques including DNA profiling and such other tests with the registered medical practitioners things necessary in a particular case. कोई भी ब्लड मिला है, कोई भी ब्लड स्टेन है, तो आप उस सब क्यों, क्योंकि जहाँ पर अफेंस कमिट हुआ है वहाँ पर मान लीजिए कोई ब्लड स्टेन्स, कोई ब्लड मिला है, ब्लड स्टेन्स मिला है, प्लस जो पर्सन अक्यूज्ड है उसके कपड़े पे भी कोई ब्लड है या उसका क्या नाम है कहीं कोई कट लग गया वहाँ से ब्लड निकल रहा है. हम क्या करेंगे, उन दोनों ब्लड्स का सैंपल लेके मैच कर लेंगे. अगर मैच कर गया तो हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ ये एक एविडेंस है जिससे ये प्रूव हो सकता है दैट इसने अफेंस किया है. ये प्रूव होगा या नहीं ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी. पुलिस का काम क्या है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस. कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए वो क्या करा सकता है, एग्जामिनेशन करा सकता है एक्यूज्ड की. Explanation B says that registered medical practitioner means a medical practitioner who possesses any medical qualification as defined in section 2H of Indian Medical Council Act. Now section 53A, examination of person accused of rape by medical practitioner. When a person is arrested on a charge of committing an offence of rape, other offences हैं तो 53, रेप का ऑफेंस किया है, कमिट किया है उस पर्सन ने तो 53A, या अटेम्प्ट टू कमिट रेप, या तो रेप किया है या अटेम्प्ट किया रेप कमिट करने का. एंड देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट उसके एग्जामिनेशन से क्या होगा, हमें एविडेंसेस मिलेंगे, पुलिस ऑफिसर को एविडेंस मिलेगा विच विल बी हेल्पफुल इन इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल. सो in that case it shall be lawful for the registered medical practitioner employed in a hospital run by government या local authority. कौन सा हॉस्पिटल होना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या लोकल अथॉरिटी. एंड अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी नहीं, हॉस्पिटल नहीं है, देन इन दैट केस विद इन द रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर फर्स्ट इज गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के हॉस्पिटल हो. अगर ये नहीं है इनकी एब्सेंस में विद इन 16 किलोमीटर के रेडियस में जो भी हॉस्पिटल है
उसमें आप एग्जामिनेशन करा लीजिए मेडिकल रजिस्टर प्रैक्टिशनर से। एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर नॉट द बिलो ऑफ रैंक ऑफ SI, सेम है, जो पुलिस ऑफिसर उसकी रैंक बिलो SI नहीं होनी चाहिए। नाउ 53A में एक्स्ट्रा क्या है, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो जो एग्जामिनेशन करेगा उसे एक रिपोर्ट बनानी होगी, इसमें उसको ये चीज़ें मेंशन करनी मैंडेटरी है। सी शैल विदाउट डिले एग्जामिन सच पर्सन एंड प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑफ एग्जामिनेशन गिविंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ये चीज़ें होनी मैंडेटरी, इसीलिए स्पेसिफाई कर रखा है। रिपोर्ट तो हर मेडिकल प्रैक्टिशनर बनाएगा ही कि हाँ मैंने ये एग्जामिन किया है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको रिपोर्ट बना के देता है। बट अगर वो पर्सन अक्यूज ऑफ रेप है, देन इन दैट केस क्या क्या, नेम एंड एड्रेस ऑफ द अक्यूज एंड द पर्सन बाय हुम ही वॉज ब्रॉट। एक्यूज का क्या नेम एंड एड्रेस है, एंड जो उसे लेके आया उसका क्या नेम एंड एड्रेस है। एज ऑफ द अक्यूज्ड, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, फर्स्ट थिंग व्हाट ही आस्क, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एज, तो नेम एंड एड्रेस एंड एज। मार्क्स ऑफ इंजरी, कहाँ कहाँ इंजरी है, अगर उस पर्सन की बॉडी में मार्क्स ऑफ इंजरी है तो कहाँ कहाँ है वो आप मेंशन करिए अपनी रिपोर्ट में। डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ द अक्यूज फॉर DNA प्रोफाइलिंग, DNA प्रोफाइलिंग के लिए उससे जो भी सैंपल लिए, फिंगर नेल्स के, अगर आपने क्या नाम है कोई भी क्लिपिंग ली है, हेयर लिया है, कुछ भी लिया है, तो आप उसे मेंशन करिए मैंने क्या लिया। बिकॉज जब आपका वो फॉरेंसिक से टेस्ट होकर के आ जाएगा तो हम ये चेक कर लेंगे जो पर्सन जिसे अरेस्ट किया गया है रेप के लिए, रेप का अक्यूज जो है या अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, एंड द कमीशन जहाँ पर ऑफेंस कमिट हुआ है वहाँ पर भी अगर उसके कुछ ऐसे सैंपल्स मिल रहे हैं तो तभी तो कोरोबोरेट होगा कि हाँ यहाँ पर वो पर्सन फिर कैसे प्रेजेंट था, वहाँ पर उसके ब्लड स्टेन्स कैसे पाए गए, वहाँ पर उसके हेयर्स कैसे पाए गए। तो इस वजह से आपने जो भी सैंपल लिए हैं उसे भी आप मेंशन करिए। अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल, और कोई अगर मटेरियल पर्टिकुलर तो उसे भी डिटेल में आप बताइए। द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइजली द रीजंस फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट। प्रिसाइजली अब बताइए कि हर जो आपने टेस्टिंग की है उसका क्या कंक्लूजन है। एग्जैक्ट टाइम एंड कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन, बताइए कब से एग्जामिनेशन शुरू हुआ है, किस टाइम पर ख़त्म हुआ है, उसका भी टाइमिंग मेंशन होना चाहिए। और मेडिकल प्रैक्टिशनर की ये ड्यूटी है दैट ही शैल विदाउट डिले फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, कि दैट दिस इज द रिपोर्ट दैट मैंने जो भी एग्जामिनेशन किया था उसकी ये रिपोर्ट है, वो आप पुलिस ऑफिसर को देंगे, मेडिकल प्रैक्टिशनर। एंड पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसे मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा जब वो 173 का वो रिपोर्ट्स देगा। 173 आपको प्रोवाइड करता है ना, पुलिस रिपोर्ट जाएगी, पुलिस रिपोर्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जाने हैं उसमें साथ में ये भी जाएगा। एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। अब पर्सन अरेस्ट किए, जिस भी पर्सन को अक्यूज्ड वर्ड नहीं यूज हुआ है, ये नहीं कहा जा रहा कि उसने कोई ऑफेंस किया है, अरेस्ट किया गया उसे किसी भी रीजन से। तो व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड ही शैल बी एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल ऑफिसर इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, एंड द केस ऑफ मेडिकल ऑफिसर इज नॉट अवेलेबल बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सून आफ्टर हिज अरेस्ट इज मेड। अगर वो फीमेल है, एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी शैल बी अंडर द सुपरविजन ऑफ अ फीमेल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर। और अगर फीमेल मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो एनी फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो एग्जामिन करेगा मेडिकल प्रैक्टिशनर अरेस्टेड पर्सन को, शैल प्रिपेयर द रिकॉर्ड ऑफ सच एग्जामिनेशन। तो आपको वैसे भी डॉक्टर्स अपनी रिपोर्ट बनाते ही हैं, मेंशनिंग देयर इन एनी इंजरीज या मार्क ऑफ वायलेंस अपॉन द पर्सन अरेस्टेड एंड द अप्रॉक्सीमेट टाइम व्हेन सच इंजरीज या मार्क हैव बीन इन्फ्लिक्टेड। ये इंजरीज वगैरह का हम एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट क्यों बना रहे हैं, कि क्यों हमें पता चले इंजरीज किस नेचर की थी, सो दैट जब ट्रायल होगा ना, फर्स्ट क्या है, अभी तो अरेस्ट किया है, फर्स्ट द पर्सन इज अरेस्टेड, आफ्टर दैट इन्वेस्टिगेशन चलेगा, एंड आफ्टर दैट इंक्वायरी होगी, एकदम लास्ट में फिर जाके ट्रायल होगा, तब तक तो मार्क ऑफ इंजरीज जा चुकी होंगी। तो अगर हमारे पास रिपोर्ट होगी तो ट्रायल में मैजिस्ट्रेट को या कोर्ट को ये एग्जामिन करने में हेल्पफुल रहेगा कि हाँ इंजरी किस नेचर की थी,
कौन सा सेक्शन लगना चाहिए, कौन से सेक्शंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। अगर सीरियस नेचर की थी तो क्या ग्रीवियस हर्ट लगेगा, नॉर्मल था तो सिंपल हर्ट लगेगा। तो फॉर दैट पर्पस इट इज़ नेसेसरी टू एग्जामिन द पर्सन अरेस्टेड। एंड जिस भी पर्सन को एग्जामिन किया गया है उसे एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो है सून फोर्थफिट देनी होगी, फर्निश बाय द मेडिकल एट द केस में टू द अरेस्टेड पर्सन और द पर्सन नॉमिनेटेड बाय सच पर्सन अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट। ओके, 164A में विक्टिम का एग्जामिनेशन होता है, विक्टिम ऑफ रेप का एग्जामिनेशन होता है। 53A में अक्यूज ऑफ रेप का एग्जामिनेशन है। 164A इज विक्टिम का एग्जामिनेशन, विक्टिम ऑफ रेप का। नाउ सेक्शन 54A, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसकी आइडेंटिफिकेशन। तो 54A क्या कर रहा है, आपको प्रोसीजर प्रोवाइड कर रहा है कि जो पर्सन अरेस्ट किया गया है उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होना है। और इसकी रेलेवेंसी कहाँ प्रोवाइडेड है, सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इसकी रेलेवेंसी बताता है। तो वेयर अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड हिज आइडेंटिफिकेशन बाय एनी अदर पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच ऑफेंस, इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी आइडेंटिफिकेशन नेसेसरी, देन इन दैट केस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिक्वेस्ट करेगा कोर्ट को एंड कोर्ट डायरेक्ट करेगी दैट उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाए अरेस्टेड पर्सन का। हाउएवर जो पर्सन आइडेंटिफाई कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन को भी कर सकता है, जो आइडेंटिफाई कर रहा है अगर वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है देन इन दैट केस आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस मैजिस्ट्रेट की सुपरविजन में होना चाहिए। सी under the supervision of judicial magistrate who shall take appropriate steps to ensure that the such person identifies the person arrested using the methods that person is comfortable with, and that process shall be videographed. If the person is mentally or physically disabled, person identifying is mentally or physically disabled, and in that case the identification shall be done under the supervision of judicial magistrate and it shall be videographed. 55A इज फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। जिस पर्सन को अरेस्ट किया है उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। 56 इज सेज दैट द पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है विदाउट वारंट उसे विद अननेसेसरी डिले आपको मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है, प्रेजेंट करना मैजिस्ट्रेट के सामने, एंड 24 आवर्स से ज़्यादा आप उसे डिटेन नहीं कर सकते। पुलिस ऑफिसर 24 आवर्स से ज़्यादा उसे डिटेन नहीं कर सकती है। 58 सेज दैट अगर आपने पुलिस ऑफिसर ने किसी ऑफिसर इंचार्ज ने किसी भी जिन भी पर्सन्स को विदाउट वारंट अरेस्ट किया है उनके बारे में अरेस्टेड विदाउट वारंट उनके बारे में वो एक रिपोर्ट भेजेगा किसको, डीएम को। और अगर डीएम कहता है तो एसडीएम को। नॉर्मली अरेस्ट जिन पर्सन्स को विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया उनकी एक रिपोर्ट जाएगी डीएम के पास, ऑफिसर इंचार्ज भेजेगा। 59 इज सेज डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड। जिस पर्सन को पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट कर दिया है वो कैसे डिस्चार्ज होगा, एक्सेप्ट ऑन हिज ओन बॉन्ड और ऑन बेल और अंडर द स्पेशल ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। या तो वो बेल पे डिस्चार्ज होगा या तो वो बॉन्ड फिल करके डिस्चार्ज होगा या फिर मैजिस्ट्रेट के स्पेशल ऑर्डर पे डिस्चार्ज होगा। 60 सेज दैट पावर ऑन स्केप टू परस्यू एंड रिटेक। किसी पर्सन को लॉफुल कस्टडी में अरेस्ट कर लिया गया था उसके बाद वो स्केप कर गया, देन इन दैट केस ही मे बी इमीडिएटली pursue and arrest the person in any place in India। उसे pursue करके कहीं भी किसी भी प्लेस ऑफ इंडिया में pursue करके अरेस्ट किया सकता है। 60A says that arrest to be made strictly according to the code। जो भी अरेस्ट होगा वो कैसे होगा, CRPC के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होगा। अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस कोड नो अरेस्ट शैल बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग द प्रोविजन और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर प्रोवाइडिंग द अरेस्ट। चैप्टर 6 आपका समन्स का है। समन्स मीन्स जनरल, समन्स भी कहीं डिफाइंड नहीं है आपका कोड में। समन्स मीन्स एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू अपीयर एन ऑर्डर गिवन टू
an order of the court to given a person to appear in court or to produce a document. समन दोनों चीज़ों के लिए इशू, या तो किसी पर्सन की अटेंडेंस रिक्वायर करने के लिए समन इशू हो सकता है, या तो कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए हो सकता है. 61 में फॉर्म ऑफ समन प्रोवाइडेड है दैट इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड इट इन डुप्लीकेट. समन्स इन राइटिंग होना चाहिए, इन डुप्लीकेट होना चाहिए, साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होना चाहिए, सील ऑफ द कोर्ट होनी चाहिए. तो ये 4 चीज़ आप याद रखिएगा कि समन इन डुप्लीकेट होना चाहिए, सम इन राइटिंग होना चाहिए, साइंड एंड सील्ड बाय द कोर्ट होना चाहिए. 62 सेज समन्स हाउस सर्व्ड. तो हर समन कौन सा शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर और सब्जेक्ट टू सच रूल एज स्टेट गवर्नमेंट थिंग्स. समन शैल इफ प्रैक्टिकल सर्व पर्सनली. समन्स की सर्विस पर्सनली होनी चाहिए, जिस पर्सन को समन दिया जा रहा उसे पर्सनली सर्व करना चाहिए समन. एंड 63 सेज दैट अगर समन किसी कॉर्पोरेट बॉडी या सोसाइटी को देना है देन इन दैट केस 63 अप्लाई करेगा, दैट उसके सेक्रेटरी को या लोकल मैनेजर को आप समन सर्व कर दीजिए. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉर्पोरेशन में रजिस्टर्ड सोसाइटी भी आती है आपकी. 64 सेज दैट 64 सेज 62 तो आपका कह रहा है कि क्या ना पर्सनली सर्व होना चाहिए, बट इफ पर्सनली सर्व करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, वो पर्सन नहीं मिल पा रहा, देन इन दैट केस किसी भी उसके फैमिली के अडल्ट मेल मेंबर को जहां वो रहता है उसे समन सर्व किया सकता है. एंड अडल्ट मेल मेंबर सर्वेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली. जबकि ऑर्डर 5 रूल 15 में सीपीसी में फीमेल को भी हम अडल्ट मेल मेंबर मानते हैं, बट यहाँ पर अडल्ट मेल मेंबर बोला है कि फीमेल को भी वहाँ अडल्ट मेंबर माना जा सकता है समन सर्व करने के लिए. सो सीआरपीसी में आपको क्या याद रखना है कि अडल्ट मेल मेंबर को सर्व होगा समन इफ द पर्सन टू हुम द समन इज टू बी सर्व्ड इज नॉट फाउंड. 65 सेज दैट जब सर्विस किसी भी ये अब प्रोसीजर्स से नहीं हो पा रही समन्स की सर्विस, देन इन दैट केस सर्विंग ऑफिसर क्या करेगा, अफिक्स कर देगा वन ऑफ द डुप्लीकेट ऑफ द समन्स टू सम कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द हाउस एंड होमस्टेड इन विच द पर्सन समन ऑर्डिनरली रिसाइड्स. ओके, अफिक्स कर देगा जहां वो रहता है उस पर्सन के किसी भी हाउस के किसी भी कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पे. कॉन्स्पिक्यूअस मतलब विच कैन बी इजिली सीन, विच कैन बी इजिली नोटिस्ड. ओके, वहां अफिक्स कर देगा. एंड 66 इज समन ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट और 67 68 आपका आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन है. ओके, नाउ दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर. We will continue in the next lecture from after this part. Okay.